Praise the Lord, everyone. I hope all of you are well and you are rejoicing in the Lord. And last week you were good, and your family were also good. And God is so gracious, so kind, so loving that He kept us all under His grace. And now we will start the service as every Saturday and Tuesday I come, and I speak in the mixed language, so all the people can follow nicely. That is the purpose. Wherever I am not clear, please tell me. Okay. Anupam ji, praise the Lord. God bless you. And I know Shabnam ji also is there. God bless you. And today we are going to start it with the prayer. Dear Heavenly Father, we come to Thee, we praise You and thank You for this wonderful time You have given us, this wonderful evening You have given. Thank You, dear loving Father, for all Your blessings in our life. Thank You for keeping us well and alive. Thank You, dear Father, for keeping our families also good and in a rejoicing state and in good health. Dear Father, we praise You and thank You for this page, and thank You, Anupam ji and Shabnam ji, for inviting me on this page. Thank You so much, Lord. Thank You that through this page we can spread the gospel to the people who don't know about You. Dear Father, thank You for those also who know about You and they want to learn more, and at the same time I learn so much from this. Thank You so much. Thank You, dear Lord. Be with us during this time and help me through Holy Spirit to give Thy message to all my friends. And now I ask all this in Jesus' precious name. Amen. Can you hear me? Yes. Hallelujah. Anupam Bhai, I'm so glad that you are always praising God and you are doing so good in the field of the work of the Lord. Thank you so much. Thank you, Lord. So, first of all, we'll sing a song in Hindi, and all of you know this song, so please sing with me. जाएंगे उत्तम देश में जरूर रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर जाएंगे उत्तम देश में जरूर रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर अद्भुत देश उत्तम भी वो है हमारा वो देश जो अद्भुत है स्वर्गीय देश उत्तम भी वो है हमारा वो देश जो अद्भुत है जाएंगे उत्तम देश में जरूर रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर पिता को भाया है हमें एक राज्य दे दुनिया की सृष्टि से पहले बनाया है पिता को भाया है हमें एक राज्य दे दुनिया की सृष्टि से पहले बनाया है जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर अद्भुत नगर वो है ईश्वर की रचना है दृढ़ता से नींव डाली स्थिर भी किया है अद्भुत वो नगर है रहती है दृढ़ता से नींव डाली स्थिर भी किया है जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर
पवित्र नगर वो है, धार्मिकता रहती है, स्वर्गीय स्वभाव से तैयार भी किया है। पवित्र नगर वो है, धार्मिकता रहती है, स्वर्गीय स्वभाव से तैयार भी किया है। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। सनातन राज्य वो है, युगानुयुग वो रहेंगे सदा उसमें, उसने जिन्हें चुना है। सनातन राज्य वो है, युगानुयुग वो रहेंगे सदा उसमें, जिनको उसने चुना है। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। प्रभु को देखेंगे, आनंद से भर जाएंगे, उसके समान होंगे, हमारा जीवन वो है। प्रभु को देखेंगे, आनंद से भर जाएंगे, उसके समान होंगे, हमारा जीवन वो है। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। So what a wonderful opportunity we have by accepting Jesus Christ in our life, by having Jesus in our life, and by following him and by believing that he is the Lord, we will enter the kingdom of God, we will enter the kingdom of heaven, and we will live there forever. The best thing what I like in this, that we will see the Lord, and we will get so much happiness, so much joy by seeing him, and we will live with all the angels and with all the people of God. That is the wonderful thing, isn't that true? And I welcome Sister Grace Burden, and thank you, you have come. God bless you very much. So today the topic which I have taken, that is very beautiful topic, and this topic was shared long ago, but recently I had promised that I'll share this topic once more, because recently something happened that I was so motivated. मुझे एक प्रेरणा मिली कि मैं इस टॉपिक को एक बार फिर से शेयर करूं, और ये टॉपिक जो है इसका नाम है डू यू बिलीव इन एंजल्स। तो दिस इज रिलेटेड टू गॉड, बिकॉज एंजल्स वेयर डू दे लिव, वो लोग कहाँ रहते हैं? वो आसमान में रहते हैं, वो स्वर्ग में रहते हैं, सॉरी। और स्वर्ग में जो एंजल्स हैं वो हमारे खुदा ने ही उनको बनाया है, और हमसे पहले परमेश्वर ने जो है स्वर्ग दूतों की रचना की है, और सबसे पहले स्वर्ग दूत इस सृष्टि में थे और परमेश्वर ने उनको बनाया था। और ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है वो बहुत अकेला महसूस करते थे और उनको कंपनी चाहिए थी, और उन्होंने इसीलिए एंजल्स का निर्माण किया, एंजल्स की रचना करी। और ये स्वर्गीय दूत जो हैं वो प्रभु का काम भी करते थे और परमेश्वर की आराधना करते थे और उसको अपनी कंपनी देते थे। तो ये जो इसके लिए एक वर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि परमेश्वर ने मुझे दी है बाइबल में से। वो वर्स ये है कि कोलोसियन 1:16 में लिखा है, क्योंकि उसी में वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी,
क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानता, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। तो हु इज दैट पर्सन? वो है जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट जो है वो शुरू से हैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र एंड परमेश्वर पवित्र आत्मा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी सृष्टि जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही रची गई है। क्योंकि जॉन 1:1 में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने सारी सृष्टि की रचना की है। और उसी ने जो है स्वर्गदूतों को बनाया है। हम अक्सर सुनते हैं कि स्वर्ग इन प्रेयर भी से कि गॉड प्लीज सेंड द एंजल्स टू प्रोटेक्ट अस। कहते हैं ना, हम कहीं जा रहे होते हैं तब भी हम ये कहते हैं कि गॉड बी विथ अस एंड प्रोटेक्ट अस विथ योर एंजल्स। घर में भी जब हम सोने जाते हैं तो हम कहते हैं कि अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमारे घर के चारों तरफ बाड़ा बांध। तो इसका मतलब ये है कि स्वर्गदूत जो हैं वो रियल हैं। नहीं तो बाइबल हमें ऐसा क्यों बताती कि स्वर्गदूत के बारे में बाइबल में कई जगह लिखा हुआ है। और वो एक अद्भुत रचना है परमेश्वर की, और उनको हमने देखा नहीं है या कभी हम देख भी सकते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ घटनाओं में लोगों ने स्वर्गदूतों को देखा है। अभी रिसेंटली जेरूसलम के ऊपर स्वर्गदूत घूम रहे थे और बहुत से लोगों ने उनको कैमरे में कैप्चर किया, और उन लोगों ने जो है हालेलुया कहा, प्रेज द लॉर्ड कहा, और वो बहुत ही आनंदित हुए जब उन्होंने जेरूसलम के ऊपर स्वर्गदूतों को देखा। इसी तरह चर्च के अंदर एक चर्च को कुछ लोग तोड़ने जा रहे थे, और उस चर्च को तोड़ने से पहले जब लोग आए तो उन्होंने उस चर्च के ऊपर बहुत सारे एंजल्स देखे, और वो इतने चमक रहे थे, इतने उसमें उनमें तेज था कि ये सारे लोग डर कर भाग गए और उन्होंने वो कुछ भी ना कर सके। तो ये होता है कि स्वर्गदूत हमारे पर्पस के लिए बनाए गए हैं, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, और हमारे चर्चेस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। ये सब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ये सब भविष्यवाणियाँ तो बाइबल में लिखी हुई हैं। इन सब का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो दुनिया बनी है और जब बाइबल लिखी गई है तो ये भविष्यवाणियाँ हुई हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि स्वर्गदूत हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो अभी भी हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो हर समय अपने लोगों के, परमेश्वर के लोगों के साथ रहते हैं। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, एक छोटा सा गीत है जो कि स्वर्गदूत के बारे में है, ऑल एंजल्स के बारे में है। इवन दो इट्स नॉट फ्रॉम द क्रिश्चियन बुक, बट इट इज रिटन बाय ABBA music. ABBA, all of you must be knowing that it is a group of music people who have sung this song. So this song is like this. I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the angels of the fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, then I know the time is right for me. I'll cross the street. I have a dream. I'll cross the street. I have a dream. So with angels we can do anything. We can cross the street, we can cross the river, even we can cross the sea, because they are with us, and God has sent those angels to be with us. I have a dream,
a fantasy to help me through reality. And my destination makes it worth the while, pushing through the darkness, still another mile. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels. When I know the time is right for me, I'll cross the street. I have a dream. I have a dream. A song to sing to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels when I know the time is right for me. I have a dream, a song to sing. So, what a beautiful song it is, and it is made on the biblical words that I have a dream that I can cross any problem, I can solve any problem, and God will send those angels to help us and to assist us and to protect us. That's what we have to believe. And even guardian angel is. About guardian angel, it is mentioned in the Bible. So let us see that what the Bible says about the angels. Why do you have to believe in the angels? First of all, we have to know who are angels. Angels are the spiritual beings, means they don't have the body like us, like we have this physical body. They do not have, but they are just spirits. Just like God is spirit, it is written in the Bible. The God is spirit, and we have to worship Him in the spirit. So these angels also are made in the spirit, like the spirit, and they are the supernatural beings and spiritual beings. And God's angels, the main angels whom He made in the beginning, whom He created in the beginning, were Michael, Gabriel, and Roas. So there were three angels who were made in the beginning, and it's written in the Bible that Michael stands at the right hand of God, and Gabriel at the left hand of the Lord. So at the right and left, both in of God's side, angels are there. And it's mentioned that there are 9 levels of angels in heaven. 9 levels. Just like we have the different levels here in the society, there also there are 9 levels of angels who are, divided into 3 levels, 3 orders to make it short. तो सबसे पहला जो है वो है हायर लेवल. हायर लेवल उसमें क्या होता है, सेराफिम एंड चेरुबिम ये होते हैं, ये वाले एंजल्स होते हैं जो गॉड के, परमेश्वर के बहुत नज़दीक होते हैं. और वो परमेश्वर की चमक इतनी तेज़ होती है कि ये एंजल्स जो हैं अपनी आँखों को अपने पंखों से कवर करके रहते हैं, और वो परमेश्वर को डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश बहुत ही तेज़ है और उससे उनकी आंखें चौंधिया जाएंगी, इसलिए वो अपनी आंखों को खोल नहीं सकते हैं. और वो हर समय गाते रहते हैं, होली 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 इज़ द लॉर्ड. उसके बाद है मिडिल ऑर्डर दिस एंजल्स who are, virtues, angels of virtues and powers. Then third, lowest angels, who are the angels of principalities and
under this come the archangels and angels. So these are the three categories. Three categories of angels are there, which we have just now seen. सो एंजल्स का वर्णन जो है वो बाइबल के अंदर पाया जाता है. ये नहीं कि वो केवल पुराने नियम में पाया जाता है, बल्कि वो नए नियम में भी पाया जाता है. सो इनका जो जिक्र है वो पूरी बाइबल के अंदर है. और हम देखते हैं कि 1 थेसलोनियन 4:16 में क्या लिखा है कि 1 थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 16 में लिखा हुआ है, For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with a voice of an archangel, and with the sound of trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. So here we see that angels का वर्णन है. आर्च एंजल जो है वो किसके साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ नीचे उतरेंगे और हम उनको देख पाएंगे, क्योंकि जो सेकेंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड इज़ वेरी नियर. और सेकेंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड में ऐसा लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट जो हैं वो एंजल्स के साथ नीचे आएंगे और अपने लोगों को ले जाएंगे. लेकिन सबसे पहले हु विल राइज, सबसे पहले जो कि परमेश्वर में, जो यीशु मसीह में सो गए हैं, वो सबसे पहले जागृत होंगे. तो जो लोग कब्र में हैं, जो लोग धरती के अंदर हैं, वो लोग सबसे पहले उठेंगे. पर वो कौन है? सभी लोग नहीं, केवल विश्वासी लोग. तो और उन विश्वासी लोगों को प्रभु यीशु मसीह अपने साथ ले जाएंगे. और उसके बाद जो जिंदा हैं और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह अपने साथ ले जाएंगे और ये स्वर्गदूत उनको अपने साथ उठा लेंगे. तो हम देखते हैं कि एक विश्वासी होना कितना ज़रूरी है. अगर हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं तो हम यीशु मसीह के साथ उस सेकेंड कमिंग में उसके साथ नहीं जा सकते हैं. तो इसलिए हमको बहुत ध्यान देना है कि हम क्या हैं, हम कहाँ हैं. क्या हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में? क्या हमने अपने पापों से तौबा करी है? क्या हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे पापों के लिए बहाया और हमने उसको अपना लॉर्ड एंड सेवियर माना है? तभी हम विश्वासी हैं और तभी हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं. और एक जगह पर एक और एंजल्स का वर्णन है जिसका नाम है राफेल. राफेल का वर्णन जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर है. और अदर देन गैब्रियल एंड माइकल देयर इज वन मोर एंजल दैट इज कॉल्ड राफेल. राफेल का वर्णन कैथलिक्स की बाइबल में भी है. और ये एंजल जो है, इस एंजल को हम एंजल ऑफ हीलिंग कहते हैं. एंजल ऑफ हीलिंग, राफेल, एंजल ऑफ हीलिंग. जब बेथसेदा के तालाब में हर साल पानी को हिलाया जाता था, तो ये राफेल एंजल ही नीचे आता था और दूसरे एंजल्स भी आते थे और वो बेथसेदा के तालाब के पानी को हिलाते थे. और जो भी उसमें सबसे पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था. चाहे वो कोई भी बीमारी हो, उसको वो चंगा हो जाता था. तो ये है राफेल एंजल का काम. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक और एंजल था जो कि परमेश्वर को बहुत प्रिय था, बहुत ज़्यादा ही परमेश्वर उससे प्रेम करते थे. और वो कौन सा एंजल था? वो, उसका नाम है लूसीफर. लूसीफर, गॉड ने लूसीफर को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर बनाया था और परमेश्वर लूसीफर को बहुत प्रेम करते थे. और उसका पहला नाम जो था वो था लूसीफर मॉर्निंग स्टार, बिकॉज उसके अंदर इतनी चमक थी, इतनी ताकत थी कि वो एक मॉर्निंग स्टार कहलाता था. और परमेश्वर उसको बहुत ही प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे. लेकिन यो लूसीफर के अंदर घमंड आ गया. जब लूसीफर ने देखा कि मैं तो परमेश्वर की हर बात को जानता हूँ और परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसे होता है, मैं भी वैसे ही कर सकता हूँ, क्यों ना मैं परमेश्वर के सिंहासन पर बैठ जाऊँ. और परमेश्वर जो कि ऑमनीपोटेंट है और ऑल नोइंग परमेश्वर है, उसको तो ये बात पता चल गई और उसने
उसके घमंड को देखकर उसको नीचे गिरा दिया। और लूसीफर को जब नीचे गिरा दिया, उसके साथ साथ लूसीफर ही नहीं बल्कि 30% एंजल्स भी नीचे गिरे, क्योंकि वो सब वहाँ स्वर्ग में लूसीफर को फॉलो करने लगे थे। तो इस तरह से लूसीफर जो है वो नीचे गिरा और वो परमेश्वर से बदला लेने के लिए शैतान बना, जिसको डेविल भी कहा जाता है। और यही डेविल जो है वो परमेश्वर से लड़ाई करते जा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग बढ़ें। वो चाहता है कि मेरी सेना बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मेरे राज्य में प्रवेश करें, जो कि है नरक। बट खुदा बाप जो है हमको नरक से बचाना चाहता है, इसीलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, जो कि उसका इकलौता बेटा है। और हम देखते हैं कि जब सबके अंदर एक आत्मा होती है, हम सब के अंदर आत्मा है। जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो एक मिट्टी के पुतले के जैसे हमारी रचना करी और उसमें अपना श्वास फूका, और उस श्वास के साथ साथ हमारे अंदर और क्या है, आग है और प्रकाश है। तो आत्मा का स्वरूप ये है कि उसमें परमेश्वर का श्वास, आग और प्रकाश है। तो हर एक जन को उसने एक आत्मा दी है, और परमेश्वर ने यही आत्मा जो है वो लूसीफर को भी दी थी। जितने एंजल्स बने उन सब में परमेश्वर की आत्मा है। और हम कभी कभी कहते हैं कि परमेश्वर जब इतना शक्तिशाली है और उसके अंदर इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है, तो वो शैतान को नाश क्यों नहीं कर सकता। हमारे मन में कई बार ये सवाल उठता है, तो वो क्यों नहीं उसको नाश कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर भी बसती है और वो अपनी ही आत्मा को नाश नहीं करेगा। वो अपनी आत्मा को नाश नहीं करेगा, लेकिन एक दिन आएगा जब शैतान की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और उसको हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो ये बाइबल हमें बताती है। और आत्मा जो है वो अमर होती है, आत्मा जो है कभी मरती नहीं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा जो है वो दूसरे शरीर में चली जाती है, या फिर वो दुष्ट आत्मा बन जाती है, या वो कई योनियों में जाती है, कई तरह के जानवरों से गुजरते गुजरते फिर से वो मनुष्य जाति में आती है। तो मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है, क्योंकि आज एक बार जन्म होता है इंसान का और उसके बाद उसका न्याय होता है। बाइबल हमें ऐसे बताती है कि एक बार इंसान का जन्म होता है और उसके बाद उसका न्याय होता है। तो मरने के बाद हम सब जो है वो न्याय के लिए खड़े होंगे और परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे। परमेश्वर के जगह पे कई बार हम देखते हैं कि सिंहासन पे यीशु मसीह हैं और यीशु मसीह न्याय कर रहे हैं। और हिब्रू चैप्टर 1:14 में लिखा हुआ है, हिब्रूज चैप्टर 1:14 में, आर दे नॉट ऑल मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स सेंट एंड टू सर्व फॉर द सेक ऑफ दोज who are to inherit salvation। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि क्या ये एंजल्स नहीं हैं जो कि उन लोगों के पास भेजे जाते हैं जिनका सैल्वेशन होने वाला है, जिनका उद्धार होने वाला है। क्योंकि ये एंजल्स उनके पास आकर उनको बताते हैं कि परमेश्वर का उद्धार तुम्हारे लिए आवश्यक है, और वो उनको लीड करते हैं, गाइड करते हैं कि तुमको उद्धार कैसे मिलेगा। तो यही बात जो है वो बाइबल के हिब्रूज की पुस्तक में 1:14 में लिखी हुई है। God created angels first. This we have seen already, and then they live in heaven. They live in heaven. That we will see later, that how they contacted the earth also. But mainly all the angels live in heaven. Now to make it short, we will straight away go to the functions of angel. Angels का काम क्या है, वो गॉड ने उनको क्यों बनाया, उसका क्या पर्पस है गॉड का एंजल्स को बनाने का। एक तो पर्पस है कि दे आर एंजल्स ऑफ प्रोटेक्शन, वो हमारी सुरक्षा करते हैं।
तो जैसे कि हमने अभी देखा कि हम कहीं जा रहे होते हैं तो हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर हमारे चारों तरफ अपने स्वर्गदूतों को रखना, हमारी रक्षा करना, हमारे फैमिली की रक्षा करना। और जब हम सोने चलते हैं तब भी हम प्रार्थना करते हैं कि अपने स्वर्गदूतों को हमारे घर के चारों तरफ रखना और हमारी रक्षा करना। उसी तरह चर्च के ऊपर हमने देखा, फिर जेरूसलेम के ऊपर एंजल्स मंडरा रहे हैं, ये हमने देखा। तो इसका मतलब है एंजल्स जो हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैं जल्दी से बताना चाहूँगी कि एक यंग लड़की थी और वो कहीं कहीं पढ़ती थी या कहीं जॉब करती थी और उसको शाम को अपने घर वापस जाना था। और वो वापस जाने के लिए उसके घर का रास्ता काफ़ी लंबा था, लेकिन एक घाटी वाला रास्ता था जो कि शॉर्ट था। तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना इस छोटे रास्ते से जाऊं ताकि मैं जल्दी पहुंच जाऊं, घर रात होने से पहले मैं अपने घर पहुंच जाऊं। और फिर ऐसा ही हुआ कि वो उस घाटी वाले रास्ते से अपने घर सुरक्षित पहुंच गई। और फिर क्या हुआ कि दूसरे दिन पुलिस आई और पुलिस ने उस लड़की से पूछा, क्या तुमने वहाँ पर घाटी में किसी को देखा था? तो उसने कहा, नहीं तो मैंने किसी को नहीं देखा। फिर वो घाटी में जो है दो डाकू रहते थे और पुलिस ने फिर उनसे पूछा कि जो परसों जो लड़की यहाँ से गई थी उसको तो तुमने क्या किया था, रेप करके उसको मार डाला था। आई थिंक जेल में थे वो लोग, अभी घाटी में नहीं थे। तो उसको तो तुमने रेप करके मार डाला था, लेकिन कल जो लड़की गई उसको तुमने कुछ भी नहीं किया, ऐसा कैसे हुआ? तो उस डाकू ने कहा कि जब कल हमने उस यंग लड़की को देखा तो उसके साथ बहुत लंबे लंबे आदमी सफ़ेद कपड़े पहने हुए जा रहे थे, तो हम डर गए कि हम इस लड़की को कैसे पकड़ें, और इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पर एक ये छोटा सा एग्जाम्पल है जो सच्ची बात है कि परमेश्वर ने उस लड़की को अपने एंजल्स के द्वारा बचा लिया। सो ये हमारे विश्वास की बात है। कई बार हमारा एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, और हम कहते हैं अरे हम तो बाल बाल बच गए, गिरने से बाल बाल बच गए, हम उस बस से टकराने से बाल बाल बच गए। तो वो बाल बाल बचना क्या होता है? वो जो है वो स्वर्ग दूतों का हमें प्रोटेक्ट करना होता है। तो स्वर्ग दूत हमें प्रोटेक्ट करते हैं। फिर दूसरा फंक्शन है उनका कि एंजल्स ब्रिंग ब्रेक थ्रूज। एंजल्स जो है वो ब्रेक थ्रू लाते हैं, दैट मीन गुड न्यूज़ लाते हैं, और वो छुटकारा भी देते हैं। ग्रेट न्यूज़ ये अगर हम लूका में जाएं, लूका की पत्री 22 और उसकी 41 to 43 वर्सेस अगर पढ़ें तो वहाँ लिखा है, उसमें लिखा है कि जीसस के बारे में कि एंड ही विड्रू फ्रॉम देम अबाउट अ स्टोन्स थ्रो and knelt down and prayed, saying, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. And there appeared an angel to him from heaven, strengthening him. So you remember that कि जीसस जब उनको जब क्रूसीफाई करना था फ्राइडे के दिन, तो वो फ्राइडे की जो थर्सडे की नाइट में क्या कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। और उनके चेलों से उन्होंने कहा था जागते रहो, लेकिन चेले जो थे वो नींद के कारण सो गए थे। और प्रभु यीशु मसीह बहुत ही पेन में था, उसकी आत्मा जो है वो तड़प रही थी, क्योंकि उसको पता था कि उस दिन उसको क्रूस पर चढ़ना है, उसको क्रूस की जो भयंकर मौत सहनी है, और उसका दिल रो रहा था। और वो भी एक इंसान था। प्रभु यीशु मसीह केवल गॉड ही नहीं बल्कि एक इंसान भी था, और एक इंसान होने के नाते उसके शरीर से लहू पसीना जो है वो लहू बन के गिर रहा था। और पर जो यीशु मसीह कहते हैं अपने पिता परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता ये कप अगर हो सके तो हटा ले,
फिर भी मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर इतना ओबीडियंस था, वो अपने पिता परमेश्वर के उद्देश्य को, पर्पस को जानते थे कि उन्होंने कहा मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। और उसी समय एक स्वर्गदूत जो है वो सामने आया और उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को शक्ति दी, दैट मीन्स उसको काउंसिल किया और उसको सामर्थ्य दी। सो यहाँ पर यीशु मसीह जो कि ह्यूमन बीइंग के रूप में था, उसको भी सांत्वना की ज़रूरत थी और उसको भी शक्ति की ज़रूरत थी, और वो परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजकर पूरी की। तो यीशु मसीह को भी स्वर्गदूत ने स्ट्रेंथ दी। फिर मैथ्यू 4:11 में अगर हम जाएं, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 11 में, तो वहाँ पर जीसस को टेम्पटेशन में डालने का वर्णन है। जीसस को टेम्पटेशन में किसने डाला? शैतान ने डाला। और वो जीसस को टेस्ट करना चाहता था कि अगर वो जीसस को भरमाएगा तो जीसस जो है वो उसको सिजदा करेगा और वो उसकी मंडली में आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ, उसने वचन से ही शैतान को हरा दिया, वचन से शैतान को हराया। बट शैतान बहुत चालाक है, उसको भी हर एक वचन जो बाइबल में लिखा है वो पता है, उसको पता है कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी वचन से ही उसको हराया। और लास्ट में जब उसने कहा कि शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, तभी जाके शैतान उससे दूर हुआ। तो हमें भी इसी तरह से शैतान को झटकना है यीशु मसीह के नाम में, और वो हमसे दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर एंजल्स की क्या बात है कि जब टेम्पटेशन ओवर हो गया, तब परमेश्वर के स्वर्गदूत आए और वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुदा का बेटा है और वो उसकी सेवा टहल करने लगे। तो यहाँ फिर से स्वर्गदूतों का वर्णन है। इस तरह से हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जो हैं वो कई जगह उनका वर्णन है। और हम देखते हैं कि जब शुरू में जब जीसस पैदा नहीं हुए थे तो कि मेरी के पास भी वो आते हैं, मेरी मरियम के पास आता है और वो कहता है कि वो कौन सा फरिश्ता था, वो दूत था गेब्रियल फरिश्ता उसके पास आता है और कहता है तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। तो वहाँ पर भी एंजल्स देखे आके उसको संदेश देता है। तो गेब्रियल एंजल को हम संदेश देने वाला एंजल कहते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो एंजल है वो जोसेफ के पास भी जाता है और जोसेफ से कहता है कि मतलब मरियम जो है वो पवित्र है, तू उसको छोड़ के मत जाना, और उसके अंदर जो भी बेबी है, बच्चा है, वो पवित्र आत्मा की तरफ से है और परमेश्वर की तरफ से है, तो तू उसको छोड़ना नहीं। फिर एक बार वो आता है एक बार और वो जोसेफ के पास आता है जब जीसस थोड़े से बड़े हो जाते हैं, 1.5-2 साल के होते हैं, तब वो आके जोसेफ से ड्रीम में कहता है कि उठ और अपनी बीवी मरियम और अपने बच्चे को लेकर मिस्र को निकल जा। और उसने जब ऐसा कहा तो जोसेफ ने तुरंत उसकी बात मानी और वो जीसस को लेके मिस्र चला गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि वो केवल प्रोटेक्शन के लिए ही नहीं है, बल्कि वो संदेश भी देते हैं। वो संदेश अपने लोगों को देते हैं। ये नहीं कि हर एक को वो संदेश देते हैं, पर जो परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर जिनको बचाना चाहते हैं, वो उनके पास स्वर्गदूतों को भेजते हैं। और ये जो एंजल्स हैं ये हीलिंग में भी मदद करते हैं। जो लोग बीमार होते हैं उनके चंगाई में मदद करते हैं। वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। जॉन 5:4 में लिखा हुआ है कि हाउ बेथसेदा के तालाब में राफेल एंजल जो है वो हर साल एक बार आता था और पानी को हिलाता था, और उसमें जो भी जाता था सबसे पहले वो चंगा हो जाता था। तो ये लोग जो है एंजल जो है वो चंगाई के लिए भी होते हैं। and they can help in the
इन क्लेंजिंग एंड पर्जिंग। कुछ लोग जो अपवित्र होते हैं और उनको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, और उनको वो लोग झिझकते हैं कि हम कैसे परमेश्वर की सेवा करें। तो ऐसे लोगों को जो दूत लोग हैं, स्वर्ग दूत, उनको क्लीन करते हैं, उनको क्लेंस करते हैं, उनको पवित्र बनाते हैं। तो ऐसा लिखा हुआ है यशाया चैप्टर 6 वर्सेस 6-7 में। यशाया चैप्टर 6 वर्सेस 6-7। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए चिमटे से वेदी पर से उठा लाया, मेरे पास आया। उसने उसने मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इससे तेरे होठों को छू दिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो स्वर्गदूत आता है वो क्या करता है, आइजाया को प्रिपेयर कर रहा है खुदा का काम करने के लिए। क्योंकि आइजाया जो है वो कहता है कि मेरा मुंह इस लायक नहीं है कि मैं परमेश्वर का प्रचार करूं, लेकिन एंजल ने कहा कि मैंने तुझे एक अंगारे से छू दिया है और अब तेरा अधर्म और तेरा पाप जो है वो क्षमा हो गए हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एंजल ने यहाँ कैसे उसको क्लीन किया, उसके अधर्म को दूर किया। फिर दे ब्रिंग द गाइडेंस एंड डायरेक्शन। स्वर्गदूत जो है वो गाइडेंस, हमें गाइड करते हैं कि हमें किधर जाना है, हमें राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, हमें किस दिशा में जाना है, हमें कौन से शहर में जाना है। जब हम परमेश्वर से पूछते हैं, आत्मा में दुआ करते हैं, तो वो हमसे कहता है कि हमको कहाँ जाना है। मोजेस थॉमस जी, आपका स्वागत है, गॉड ब्लेस यू। और वो ऐसा लिखा हुआ है एक्ट्स 5:22 में, एक्ट्स 5:22 में, प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर इस मार्ग पे जा जो जेरूसलेम से गाजा को जाता है। तो यहाँ देखिए, स्वर्गदूत जो है वो फिलिप्पुस को गाइड कर रहा है कि तू उठकर गाजा की ओर जा। तो इस तरह से परमेश्वर हमें भी गाइड करता है। हमें बार बार हमारे मन में ये बात आती है कि तुझे कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ जॉब करना है, और किस देश में जाना है, किस शहर में जाना है, और किससे मिलना है, और किससे क्या कहना है। स्वर्गदूत हमें गाइड करते हैं क्योंकि परमेश्वर उन्हें हमारे लिए भेजते हैं। एंड स्वर्गदूत एट द सेम टाइम जो है वो जजमेंट के लिए भी उनका यूज़ किया जाता है, जजमेंट। सो उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा। किसे मारा? हेरोदेस को। हेरोदेस जो है वो यीशु मसीह के पीछे पड़ा रहता था, प्रभु के लोगों के पीछे पड़ा रहता था। तो एक स्वर्गदूत ने उसको मारा और हेरोदेस के बॉडी में कीड़े पड़े और वो मर गया। तो इस तरह से स्वर्गदूत जो है वो सजा देने के लिए भी, न्याय करने के लिए भी होते हैं। तो ये भी उनका एक फंक्शन होता है। फिर 8वां फंक्शन है, दे कैन ब्रिंग प्रॉफिटिक डायरेक्शन एंड एश्योरेंस इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। जब कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है तो वो प्रोफेसी करते हैं और वहाँ पर भी वो हमें बताते हैं कि क्या होगा। और ऐसा लिखा है एक्ट्स 27:23 वर्सेस 23-24 में, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे जरूर तुझे कैसर के पास जाना है, अवश्य है। देख, परमेश्वर ने जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। तो यहाँ पर पौलुस से स्वर्गदूत बात कर रहा है कि उसको फ्यूचर में क्या करना है, उसको जाना है कैसर के सामने, और उसके साथ जो चल रहे हैं वो उसके साथ हैं। तो उसके साथ कौन चल रहे हैं? ये स्वर्गदूत चल रहे हैं। इसलिए उसने पौलुस से कहा, मत डर, क्योंकि तेरे साथ ये यात्रा करते हैं। तो ये यीशु मसीह को तो गाइड किया ही, साथ साथ में उसने पौलुस को भी गाइड किया।
यीशु मसीह तो परमेश्वर का बेटा था, खैर तो वो सब कुछ जानते थे, बट मनुष्य जो है वो कुछ भी नहीं जानता और उसको परमेश्वर अपने दूतों के ज़रिए ज्ञान देते हैं। और नाइन्थ है, दे कैन ब्रिंग डिवाइन प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल एंड फ्रॉम द डेंजर। सो ये हमने देखा कि जो बुरी आत्माओं से हमें वो बचाता है और दुष्ट आत्माओं से हमें बचाता है, और एंजल्स जो है वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा लिखा हुआ है साम 91:11 में, साम 91:11, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें। तो इससे हमें कितनी तसल्ली मिलती है जब हम ये वर्ड्स पढ़ते हैं, तो हमें बहुत ही शांति मिलती है कि वो अपने दूतों को हमारे लिए देगा कि हम जहाँ भी जाएं वो हमारी रक्षा करें। और ये जब भी हम कहीं जाते हैं तभी हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे साथ भेज। नेक्स्ट फंक्शन उनका है, दे कैन मिनिस्टर स्ट्रेंथ टू अस। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। ये हमने तब पढ़ा जब यीशु मसीह गेत्सेमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे। नेक्स्ट है, दे कैन डिलीवर अ मैसेज फ्रॉम गॉड। ये लिखा हुआ है मैथ्यू चैप्टर 1:20 में कि वो जो है संदेश दे सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। और ये मैसेज जो है जब वो हमने देखा कि मरियम को और यूसुफ को संदेश दिया। किसने संदेश दिया? गैब्रियल ने। तो गैब्रियल को हम मैसेज देने वाला एंजल इसीलिए कहते हैं। नेक्स्ट है, दे कैन अपीयर इन ड्रीम्स। कई लोगों को जो है ड्रीम्स में एंजल्स दिखते हैं और वो अपनी टेस्टिमनी में बताते हैं कि हमने एंजल्स को ड्रीम में देखा। तो क्या आपने कभी एंजल को ड्रीम में देखा है? हो सकता है आपने देखा हो। तो ये एंजल्स जो है ड्रीम में भी दिखते हैं। और उसने ड्रीम में चले जाने के बाद, ये लिखा हुआ है मैथ्यू 2:13 में, उसके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को चला जा। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि दूत ने उस यूसुफ को ड्रीम में दिखकर ऐसा कहा था। And they also they will gather the elect together at the end of the age. So जब जजमेंट होगा तो ये जो एंजल्स हैं ये अच्छे लोगों को, धर्मी लोगों को और अधर्मी लोगों को अलग अलग खड़ा करेंगे और तब उनका न्याय होगा। तो उनका न्याय करते समय भी एंजल्स का बहुत बड़ा रोल है। And they appear in the visions. एक एक्ट्स 10:3 में लिखा हुआ है कि कॉर्नेलियस एक व्यक्ति था जिसने एंजल को देखा और उस एंजल ने उसका नाम पुकार के कहा कॉर्नेलियस। और ये जो है एक्ट्स 10:3 में लिखा हुआ है। एंड दीज एंजल्स क्या ही धन्य हैं जब कोई भी व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के पास आता है। कोई भी व्यक्ति जो है जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो एंजल्स क्या होता है, ये स्वर्ग में रिजॉइस करते हैं, ये डांस करते हैं, ये गाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हर्षित होते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि हर एक इंसान कितना मूल्यवान है, हर एक आत्मा कितनी कीमती है हमारे परमेश्वर के लिए, कि एक आत्मा के बचने से सारे जो दूत लोग हैं, सारे स्वर्गदूत इतना रिजॉइस करते हैं। And these angels, they can manifest in the human forms also. अभी हमने शुरू में कहा था कि उनके पास कोई बॉडी नहीं होती है, they are spirits because they are spiritual beings. लेकिन कभी कभी वो एक फिजिकल बॉडी में भी परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे कि इब्राहिम के समय में आपको याद होगा कि तीन एंजल्स आते हैं और वो इब्राहिम के घर पे आते हैं
और वो तीनों जो है वो साक्षात ह्यूमन बीइंग्स के जैसे थे। और उनको परमेश्वर ने कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये तीन स्वर्गदूत में से एक तो गॉड द फादर थे, और एक गॉड द सन, और एक गॉड द होली स्पिरिट, और वो ह्यूमन फॉर्म में अब्राहम के पास आए थे। और अब्राहम ने उनकी बहुत सेवा करी। उनको अब्राहम और सारा ने अच्छा खाना बना के खिलाया और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करी, जिसके कारण उन एंजल्स ने उनको ब्लेसिंग दी कि एक ही साल में, एक साल के अंदर तुम्हारे पास पुत्र होगा, तुम्हारे पास बेबी होगा। और ये जो उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग पूरी भी हुई। जबकि अब्राहम उस समय 99 ईयर्स ओल्ड था, और जब उनको बेबी पैदा हुआ, आइजक पैदा हुआ, तब अब्राहम 100 ईयर्स ओल्ड हो चुका था और सारा 90 ईयर्स ओल्ड हो चुकी थी। तो दोनों में 10 साल का डिफरेंस था, और फिजिकली दे वर नॉट एबल टू हैव चाइल्ड, बट सिंस गॉड ने ये प्रॉमिस किया था कि वो उनको एक चाइल्ड देगा, तो ये तीन एंजल्स ने आकर उनको ये ब्लेसिंग दी कि दे विल हैव अ चाइल्ड विद इन ए ईयर। तो गॉड जो है वो एंजल फॉर्म में भी आ सकते हैं। और इसी तरह जब लॉट जहाँ रहता था वहाँ पर भी एंजल्स ने आकर सारे उन बुरे आदमियों को जो कि होमोसेक्सुअल थे उनको अंधा कर दिया, और फिर वहाँ पर आग लगा दी सोदोम एंड गोमोरा में, और वो जल गए, वह सब खत्म हो गए। केवल लॉट और उसका परिवार बचा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एंजल्स ने बाइबल में बहुत सारे काम किए हैं। एक ही नहीं, कई जगह एंजल्स का वर्णन है, और वो जो है जीसस को सर्व करते हैं। और जीसस के ऑफ कोर्स जीसस के वो सब ऑर्डिनेट्स हैं, तो जीसस को वो सर्व करते हैं, जीसस की सेवा करते हैं और गॉड की सेवा करते हैं। और हमारे पास जो है वो आते जाते हैं, इवन दो हम फील नहीं करते हैं, हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन हम आत्मा में महसूस कर सकते हैं कि हाँ, हमारे पास कोई है जो हमें सांत्वना दे रहा है, हमें शांति दे रहा है। एक तो होली स्पिरिट है, और ये एंजल्स भी हमारे चारों तरफ रहते हैं। और ये जो ह्यूमन फॉर्म में एंजल्स आते हैं, इसको बताने के बाद मुझे अपना किस्सा भी याद आ गया, जो कि मेरे साथ करीब 1 महीने पहले हुआ था। जब मैं राजपुरा पंजाब से दिल्ली आ रही थी, तो ये मैंने पहले भी बताया अभी कुछ दिन पहले। तो मुझे शानी पंजाब ट्रेन से आना था। राजपुरा जो है पटियाला डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ से दिल्ली आना था शानी पंजाब में। तो वो शानी पंजाब उस छोटे रेलवे स्टेशन पे केवल 2 मिनट के लिए ठहरती है। तो मैं अपना सूटकेस लेके वहाँ पर खड़ी हुई थी, और ट्रेन जो है वो आ गई। और जैसे ही ट्रेन आई तो एक आदमी, मतलब मिडिल एज का होगा, मे बी 35 to 40 ईयर्स ओल्ड, और वो मेरे पास आया और उसने कहा, आप क्या अकेली हो? तो मैंने कहा हाँ, मैं अकेली हूँ। तो उसने कहा कि जल्दी से आप ट्रेन में चढ़ जाना, नहीं तो क्या होगा कि ट्रेन छूट जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर 2 मिनट के लिए रुकती है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा बट मेरा कोच तो C1 है। तो उसने कहा C1 पीछे की तरफ पड़ेगा, आप पीछे जाओ। तो मैं दौड़ी अपना सूटकेस लेके, और उसने पहले मुझे माता पुकारा था, माता आप क्या अकेली हो? तो फिर मुझे पीछे से आवाज़ आई, माता आप अभी तक पहुँचे नहीं, लाओ मुझे अपना सामान दो। और उसने मेरा सामान उठाया और वो दौड़ते हुए C1 कोच की तरफ भागा, और मैं भी उसके पीछे पीछे भागी, और उसने मेरा सूटकेस उस कोच में रख दिया और कहा अब आप चढ़ जाओ। तो मैं चढ़ गई ट्रेन में जल्दी से, और उसके बाद ही ट्रेन छूट गई। तो यहाँ पर मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब
जब मैंने बाद में सोचा इस बात को, तो मैंने सोचा कि ऐसा तो कोई भी व्यक्ति स्टेशन पे नहीं था, जबकि मैं कितनी देर तक वहाँ खड़ी रही, लेकिन मुझे सफ़ेद कपड़ों में तो कोई व्यक्ति नहीं दिखा था। और ये सडनली ये आदमी कहाँ से आ गया, और मुझे माता उसने बोला, और उसने मेरी इतनी मदद करी, मुझे ट्रेन में चढ़ा दिया, और ट्रेन छूटने से पहले ही मैं ट्रेन में चढ़ गई। हो सकता है ये कोई स्वर्गदूत ही हो, जो एक इंसान के रूप में मेरे पास आया था। तो मेरे प्रियो, ऐसा कभी कभी हमारे जीवन में होता है, जब हम विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, पर स्वर्गदूत लोग जो हैं वो हमारी मदद करते हैं। और स्वर्गदूत यही नहीं कि वो बस हवा के जैसे घूमते रहते हैं, स्वर्गदूत खाना भी खाते हैं। स्वर्ग में उनके लिए स्पेशल खाना होता है, मन्ना के जैसे उनके सॉफ्ट सॉफ्ट फूड होता है जिसको वो खाते हैं। और स्वर्गदूत जो हैं सिर्फ खाना ही नहीं खाते, बल्कि वो एक दूसरे से बोलते भी हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, और उसकी जय जयकार करते हैं, और उसके चारों तरफ खड़े होते हैं। और मतलब एक टाइम हो गया है, मतलब जो उनकी एक और भावना होती है, एक उनके अंदर एक फिजिकल डिज़ायर भी होती है। जैसे कि ओल्ड टेस्टामेंट में एक जगह लिखा है कि एक ज़माना था नोहा से पहले, जब स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर क्या देखा कि सुंदर लड़कियों को देखा, और उन्होंने उनके मन में आकर्षण जागृत हुआ उन सुंदर लड़कियों के प्रति, और वो पृथ्वी पे आके उन्होंने उनसे विवाह किया। और विवाह करने के बाद जो भी बच्चे उनके पैदा हुए वो दानव के जैसे थे, दानव बहुत लंबे बहुत चौड़े। और अभी भी आप अगर म्यूज़ियम वगैरह में जाएं तो आपको मिलेगा कि बहुत बड़े बड़े सिर और हाथ और पाँव अभी भी रखे हुए हैं। और ये दानव जो है बहुत ही हाहाकार मचा रहे थे, और जिसके कारण परमेश्वर बहुत परेशान हो गया, और उसने तभी जो है ये नोहा के समय इस धरती को ख़त्म किया, और वो बाढ़ भेज के सबको ख़त्म कर दिया था। एक तो रीज़न था कि पाप बहुत बढ़ गया था, दूसरा था कि ये दानव जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे थे, और तीसरा सब लोग कुछ लोग कहते हैं कि डायनासोर बढ़ रहे थे, उनके कारण भी बहुत खतरा हो गया था ह्यूमन बीइंग्स को। इसलिए परमेश्वर ने उसको पृथ्वी को ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो अपने ही लोगों को बनाकर वो पछताया और उसने उनको ख़त्म किया। लेकिन नोहा जो है बच गया था, और उसके परिवार से फिर जो है सृष्टि चलती रही और चलती आ रही है। और अब कब परमेश्वर लोगों को मतलब दुनिया को हलाक करेगा, ख़त्म करेगा, हाँ, हम में से किसी को वो सही समय नहीं पता है, लेकिन बाइबल में जो भविष्यवाणियाँ हैं वो पूरी हो रही हैं। और ये जो यीशु मसीह की जब सेकंड कमिंग होगी, और उसके बाद जो है दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो बार बार परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को बचाता है और फिर पछताता है, और लोग फिर भी बाज नहीं आते, वो पापों में गिरते चले जाते हैं, और वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं, बल्कि वो अपनी मनमानी करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज जो हमने चैप्टर देखा वो स्वर्गदूतों के बारे में देखा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, क्योंकि स्वर्गदूतों के बारे में हम बहुत कम सुनते हैं, बहुत कम हमको प्रीचिंग मिलती है इसके बारे में, बहुत कम स्टडीज़ हैं जो स्वर्गदूतों के बारे में हैं। पर मुझे ये स्टडी बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसलिए आपके साथ शेयर किया, और मुझे खुशी है कि मैं आज आपके साथ इसको शेयर कर सकी। और इसके बाद जब YouTube पे ये पड़ेगा, अनुपम भाई डालेंगे, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा इसे, और शेयर भी करिएगा। और हमारे सब्सक्राइबर्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, और हमें बहुत खुशी होगी अगर और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रचार जो है और सुसमाचार कई लोगों तक इस तरह से पहुंचेगा। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, और पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता करी अपने वचन को बांटने के लिए। और प्यारे प्रभु, हम हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस वचन को सुनने के लिए आए और जो बाद में इस वचन को सुनेंगे। हर एक
के ऊपर आपकी बड़ी आशीष हो प्रभु जी। और हम में से अगर कोई भी किसी मुसीबत में है या बीमारी में है या तकलीफ में है या दर्द में है, तो प्यारे प्रभु जी उनको छू दीजिए और उनके दर्द को हरण कर लीजिए, उसको दूर कर दीजिए प्यारे प्रभु। और हम आपके एंजल्स के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इतने सारे एंजल्स हमारे लिए बनाए हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमें गाइड करते हैं और जो हमको आपकी बातें बताते हैं। प्यारे प्रभु जी हमें हमेशा अपना प्रोटेक्शन दीजिए, आपके एंजल्स हमारे चारों तरफ रहें, हमारे परिवारों के चारों तरफ रहें। और हम जहाँ भी जाते हैं प्यारे प्रभु जी हमारे चारों तरफ आपके एंजल्स रहें। प्यारे प्रभु हम इस लायक हों, हम इस योग्य बने कि आपके एंजल्स हमारे पास हों। प्यारे प्रभु जी हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उनके लिए हम क्षमा चाहते हैं। दिन प्रतिदिन हम पाप करते हैं, गलतियाँ करते हैं, प्रभु जी हमें उनसे बचा और हमको क्षमा कर और हमको इतनी सामर्थ्य और शक्ति दे कि हम उन गलतियों को ना दोहराएं, उन पापों को ना दोहराएं और एक धर्मी जीवन व्यतीत कर सकें जो आपने हमें सिखाया है, जो बाइबल हमें सिखाती है। प्रभु जी हम आपकी हर आज्ञा को मानकर हम आपके लायक बने और न्याय के दिन के लिए हम अपने आप को तैयार करें, ताकि जब हम स्वर्ग में आपसे मिलें तो हम निर्दोष हों और आपके साथ रह सकें, आपके चेहरे को निहार सकें और आपको देखकर हम प्रफुल्लित और हर्षित हो सकें और आपके एंजल्स और आपके लोगों के साथ रह सकें, क्योंकि आपने हमारे लिए वहाँ पर घर बनाया है और उस घर में अवश्य ही हम रहना चाहते हैं। और प्रभु जी हमें इतनी ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल और इतनी ज़्यादा पावर दीजिए अपनी तरफ से कि हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र रख सकें और उस घर में रह सकें। अब इस विनती को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और इसे सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आमीन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ जुड़े रहे और इन वचनों को सुनने के लिए आपने मुझे प्रोत्साहित किया। और आप सबके साथ परमेश्वर हो। गॉड ब्लेस यू। आपको बहुत बहुत आशीष दे और आपके साथ हो। और गुड नाइट।